So, as time is near when we are going to give our full 12 years for the final board exam of the chemistry. So, without wasting the time, let's start with the new question. And this question is from the organic chemistry. And while normally I'm telling that which chapter is and which the question is from which unit. So today we will just read it and then we will analyze कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है. So the first is explain why cyclohexanon and hexanon आया तो means कीटोन की बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. Explain why cyclohexanon form cyanohydrin. Chemical property है while the aldehyde or ketone react with the hydrogen cyanide, they are forming the cyanohydrin in good yield, but 2,2,6 trimethyl cyclohexanon does not. So we have to be just first draw the structure कि कैसे structure है और कौन सा structure हमें दे रहा है और कौन सा structure हमें cyanohydrin नहीं दे रहा है. So for A, it says कि साइक्लोहेक्सिनन, तो साइक्लोहेक्सिनन है मींस साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज नॉट एरोमेटिक, इट इज ओनली अ साइक्लिक कंपाउंड. तो हैविंग अ कीटोनिक, बिकॉज यहाँ पे पीछे 1 लिखा है, साइक्लोहेक्सिनन 6 है एंड वी पुट द a functional group there and then form a cyanohydrin. तो ये जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा सो वी विल गेट अ साइनोहाइड्रिन. ठीक है, हमें यहाँ पे साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा. बट एंड व्हाट इज दैट, क्या मिलेगा, वी विल गेट दिस वन. ये इस तरह से आ जाएगा. यहाँ पे जो एक तरफ हमारे पास आ जाएगा OH और दूसरी तरफ CN, तो यू विल गेट दी साइनोहाइड्रिन. ये हमें साइनोहाइड्रिन मिल गया. लेकिन हमारा जो दूसरा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज दी 2,2. तो यहाँ पे 2,2 मिथाइल और 6 भी है. तो ये 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. So it says explain why cyclohexanon forms cyanohydrin in good yield, but 2,2,6 trimethyl cyclohexanon ये नहीं फॉर्म करेगा. ये जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हमें नो यील्ड ऑफ साइनोहाइड्रिन. ऐसा क्यों? साइनोहाइड्रिन, व्हाई इट इज लाइक दैट? नॉर्मली हमें पता होना चाहिए एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन बिकॉज वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट वर्किंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप. अ स्टेरिक हिंड्रेंस and a positive inductive effect hinder this carbonyl group from the attack of cyanide and we will not get the cyanohydrin. So here we will write due to the steric hindrance. steric hindrance का मतलब होता है जो कवर कर लेता है. This carbonyl is covered from the both side with the पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक कवर्ड अप है. देन साइनाइड जो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, इट विल नॉट गेट इन टच ऑफ इट, वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा एंड वी विल नॉट गेट द साइनोहाइड्रिन. सो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, एंड 3 मिथाइल ग्रुप है बेटा यहाँ पे. मिथाइल ग्रुप दी साइनाइड आयन क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अप्रोच टू द carbonyl group and hence no formation of cyanohydrin in case of 2,2,6
2 to 6 trimethyl. Trimethyl cyclohexanone. So this is the reason we have to first draw the structure. It will not approach the, we will not get the cyanohydrin. So this is the reason behind it. You can just take a screenshot of it, and I can move to the second part of this question. And still, if you have any doubt, just give me a comment in my comment box. So just go to the second part. And while we are attempting the question paper, we should be very precise with our answers. How will you obtain tertiary butyl from acetone? So यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हमें टर्शरी बुटाइल अल्कोहल आना चाहिए, टर्शरी बुटाइल अल्कोहल. सो कैसे हमें यहाँ पे टर्शरी बुटाइल अल्कोहल मिलेगा? जब हम लोग जो हमारे कीटोन्स हैं, कीटोन्स को जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, ये बात याद रखनी है कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को बेटा रिएक्ट करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वी विल गेट द प्राइमरी अल्कोहल, and rest of the aldehyde when react with the Grignard reagent will give us a secondary alcohol. But when we are reacting with the ketones with the Grignard reagent, we will get the tertiary alcohols. So how we will get like that? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? So यहाँ हमने how you will obtain tertiary butyl from acetone. Acetone है means this what we are having, or we can a better ketone बनाना है तो we can draw like this, CO and CH3 and CH3. इसे हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. This what we are having the Grignard reagent. R यहाँ पे अगर दिया है, अगर आप मिथाइल ही लेना चाहते हो, बट हमें यहाँ पे ना तो अल्काइल ग्रुप स्पेसिफाई करना, ना ही हमें यहाँ पे हैलोजन को स्पेसिफाई करना है. सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट मिलेगा. मैकेनिज्म बोला नहीं है, बट एज वी नो दैट ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज, partial negative charge. Carbon will attain a partial positive charge, and here यहाँ पे negative और positive. So what we will get? CH3, CH3, and we will get O, R, and here we will get the that is simple R. R will come here, O and MgX, and further we will do the hydrolysis of it, that is OH. एंड जब ये OH आ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये अगेन पॉजिटिव, एंड द अपोजिट चार्जेस विल अप्रोच टू ईच अदर. सो वी विल गेट CH3R. अब R जो है, बिकॉज वो CH3 भी आप लगा सकते हैं इफ यू वांट टू बी डू लाइक दैट. तो ये हो गया हमारा, दैट इज OH प्लस MgX and OH. तो ये हमें क्या मिल गया? we got the tertiary butyl alcohol. तो हमने यहाँ पे हमें मिल गया टर्ट बुटाइल अल्कोहल. सो ये बात आपने याद रखनी है कि फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल देगा ऑन रिएक्टिंग विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, and rest of the aldehyde we will get the secondary alcohol, and but ketone will give us the tertiary alcohol on reacting with the Grignard reagent. So for any doubt, just give me a comment in my comment box. See you soon, and don't forget to subscribe my channel for the coming new updates.